Hello to class 9th and class. We are in lesson number 6 of commercial studies. The name of the lesson is partnership, and today we are going to start with merits of partnership. We'll do merits of partnership. Right? Merits of partnership. What are the things that are plus point of partnership? Good points of partnership. The first one is ease of formation. First is ease of formation. Ease of formation means that it is easy to start a partnership because what you need is two members, at least two members are required, and it is inexpensive also. बहुत simple भी होता है. No legal formalities are involved. किसी तरह का कोई documentation कुछ भी नहीं है. ठीक है. Less members you need. Less members are required. No legal formalities are there. So on. So there are many things which make the easy formation possible. That is even the registration of the firm is not compulsory. यहाँ तक कि registration की बात आती है कि भाई पंजीकरण कराना है कि नहीं कराना आपको फॉर्म का, that is also not necessary. बट करा लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ना कराने के कुछ नुकसान होते हैं. अगर आपने पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उसके कुछ नुकसान होते हैं. That is we are going to discuss later on. So first of all, the first good thing about a partnership is this, that easy formation is there. That means you can easily form a partnership because less number of members are required, no legal formalities there, no much documentation is there, and moreover no compulsory registration is there. So this is the first good point of partnership. Second is a larger financial resources. Larger financial now what does this mean? This means that due to more members, due to partnership, there are more members. When more members are there, they are able to provide more funds to the firm, right? If single person is there, he cannot arrange for much of the firm. But yeah, if there are more members, they can easily provide with more funds. So more the funds are there, better financial resources are there. So better financial resources are there. It is easy it is easy to start a business, okay? Because every partner is jointly and severely liable for all the debts owed by the firm also. Even if the firm is taking some types of debt, किसी तरह का उधार ले रही है firm, तो उसको लौटाने की जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है? बाकी सारे पार्टनर्स की हो जाती है. तो चाहे पार्टनर्स उधार ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि फाइनेंस जो पैसे की इंतजाम है वो इजीली हो सकता है क्योंकि पार्टनर्स जितने ज़्यादा पार्टनर्स उतने ज़्यादा पैसा आ सकता है. मोरओवर अगर लोन लेने की बात आती है तो लोन भी इजीली लिया जा सकता है क्योंकि लोन को लौटाने की जिम्मेदारी सारे पार्टनर्स की हो जाती है. तो दिस इज द सेकंड गुड पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप. थर्ड वन इज कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट. Abilities and now what is this? Combined abilities and judgment means that जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों का स्किल्स टैलेंट उनका काम आ सकेगा क्योंकि हर एक के पास अलग तरह की एबिलिटी होती है, हर एक के पास अलग तरह का जजमेंट होता है. सो मोर पीपल आर देयर, मोर आइडियाज आर देयर, मोर इनोवेशंस आर देयर. सो द स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स आर पूल्ड टुगेदर. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर कि जितने भी लोगों के स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो सब क्या हो जा रहे हैं? मिल जा रहे हैं. तो हर कोई क्या कर रहा है? किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छा होगा ही, और वो सब क्या करते हैं? मिलकर के अपने इन स्किल्स को, टैलेंट्स को, इन गुणों को अपना शेयर करते हैं और फर्म को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. Therefore the benefit of specialization are available. तो हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल, हर पार्टनर किसी न किसी चीज़ में स्पेशल होगा तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? फर्म को मिलने लगते हैं. Now fourth merit is the direct motivation. डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब है कि सारे के सारे पार्टनर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जैसा वो काम करेंगे उनको वैसा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि अपना हार्ड वर्क से उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा जो कि उनमें बांट दिया जाएगा. तो यहाँ पे क्या, आप जितना ज़्यादा काम करोगे फर्म के लिए उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा किसको प्रॉफिट होगा? उतना ही ज़्यादा पार्टनर्स को भी प्रॉफिट होगा. तो ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक गुड पॉइंट है कि जितना ज़्यादा हार्डवर्क उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है. तो यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन की बात हो जाती है. नेक्स्ट इज क्लोज सुपरविजन. एवरी पार्टनर एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है. तो क्लोज सुपरविजन मतलब है
हर पार्टनर क्या कर रहा है, हर पार्टनर बहुत नजदीकी से अपने काम को कर रहा है, और अपने काम को कर रहा है बहुत नजदीक से। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं, क्योंकि उनका खुद की वो फॉर्म है, खुद का उन्होंने पैसे लगाया है, और खुद ही वो डेब्ट के लिए भी जिम्मेदार है, लॉसेस के लिए भी जिम्मेदार है, प्रॉफिट के लिए भी जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति क्या करता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करता है। हर पार्टनर बहुत इंटरेस्ट के साथ काम कर सकता है, उसे पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो भी उनके साथ डीलर्स हैं, जो भी उनके साथ उनके कस्टमर्स हैं, उनके साथ बहुत पर्सनली डील करते हैं, ताकि फर्म को किसी तरह कोई नुकसान ना हो। यहाँ तक कि फर्म को क्या होना चाहिए, फायदा ही फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज चीपर विद एक्सपर्ट मैनेजर्स are not employed. So here everybody is taking what, a close supervision. Next is flexibility of operations. The sixth important point is flexibility of operations. मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी काम होगा उसमें बहुत ज्यादा क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होगा, कोई भी चीज कभी भी चेंज की जा सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम लीगल गवर्नमेंट कंट्रोल। पार्टनरशिप आई टोल्ड यू कि फ्री है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इसमें नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स करने भी होते हैं ऑपरेशंस में, काम करने के तरीके में, ये काम में किसी तरह कोई बदलाव लेके भी आना होता है, तो आपको वेट नहीं करना है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू हैव टू वेट एंड सीक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सो व्हाट यू गोइंग टू डू हियर, बिकॉज the government is not controlling your firm, so you are free to take your decisions. So by just conducting a meeting among the partners, you can take the appropriate decision, and the certain changes can be brought whenever required. Secrecy. Secrecy is another important point. So here all the partners, they know about this, they know all the secrets of the firm, so they do not disclose it to the outsiders. So all the secrets of the firm remains with the partners only. A partnership firm is not required to publish the annual accounts, audit of accounts, it's not essential, and no report are to be filed with the government. तो जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, पैसे का लेन देन है, उसको पार्टनरशिप को किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं। तो सारे के सारे जो सीक्रेट्स हैं वो फर्म के अंदर ही रहते हैं, पार्टनर्स के बीच में रहते हैं, कुछ भी लीक आउट नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप एनकरेज म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब होता है हेल्प करना एक दूसरे की। तो सारे के सारे पार्टनर्स आर वर्किंग टुगेदर, सो व्हेन ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव, and they have a mutual understanding and mutual benefits are there. So whatever the problems arises, they discuss it mutually, and they take the particular decisions, and common for the benefit of all, and do their best to make the business prosper. So they all have a common goal, because they are working with the profits only. So whatever problems arises, they cooperate with each other, they discuss the problems, and they solve it, and they keep on working. Scope for expansion. Last one is scope for expansion. Scope for expansion means in case you want to expand your business, your firm, you want to bring extension to your firm. So what you can do in that case, अगर आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सोच समझ करके और पैसा अरेंज करके, क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा है, 4, 5, 6, 10, 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो ये पार्टनर्स मिलकर के पैसा अरेंज कर सकते हैं, स्किल्स उनके पास है ही, तो ये बहुत आसान होता है कि बहुत ग्रेटर पॉसिबिलिटीज होती है एक्सपेंशन की एंड ग्रोथ की ऑफ बिजनेस। यहाँ तक कि more new partners can be taken in the business, and a proper extension can be given to the business, right? So these were some of the merits. The merits were ease of formation, larger financial resources, combined abilities and judgment, direct motivation, close supervision, flexibility of operations, secrecy, cooperation, and scope for expansion. Now let's talk about the demerits. अगर हम demerits के बारे में बात करें, so डिमेरिट्स के बारे में बात करें तो कौन सी खराब बातें हैं भाई, किसी की हर चीज के अच्छी भी हो सकती है बातें और बुरी भी हो सकती है। सो अगर अच्छी बातें के बारे में बात हमने की, तो लेट्स टॉक अबाउट द रॉन्ग थिंग्स नाउ। ये बुरी बातें, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बोल रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, दे आर सेइंग जो भी रिसोर्सेज है वो क्या हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। जो भी पैसा वो लिमिटेड हो सकता है। कैसे? देयर इज अ लिमिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। आपको मालूम है कि जब फर्म पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उसमें मिनिमम नंबर्स
या मैक्सिमम नंबर्स डिसाइड होते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर दिए गए कि 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स, तो इन दैट केस क्या हो गया, आपके जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो पैसा है, वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा कि भाई 10 से ज़्यादा मेंबर्स तो हमें रखना ही नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। सो द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद द पार्टनरशिप इज दिस, द लिमिटेड रिसोर्सेज is there. Unlimited liability, the second demerit is unlimited liability. Now what does unlimited liability means? Unlimited liability का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स ने किसी से उधार लिया है, तो अगर उसको लौटाने की बारी आई और लौटा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है दूसरे का उधार लौटाने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप से बाहर आपने जिनसे भी लोन लिया है, अगर आपको उनको लोन लौटाना है और आप स्थिति में नहीं हो कि आप लोन लौटा सको या आपके पास पैसा नहीं है, तो इन दैट केस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप। हियर एवरी पार्टनर हैज व्हाट, हैज अनलिमिटेड liability, right? Every partner is fully liable for the debt of partnership business. Fear of risk may restrict initiatives and growth of business. तो यहाँ पर रिस्क की बात आती है, तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी ने रिस्क लिया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इस केस में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा उनके उधार लौटाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिमेरिट। थर्ड वन इज योर अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन life. So they are saying that life of a partnership is what? Uncertain. Life of a partnership is what? Uncertain. Life of a partnership is uncertain. Why? Life of partnership is uncertain क्योंकि यहाँ पे कुछ किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब पैसा ही खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो और बात बोली गई है वो बोला गया है कि रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर हो सकता है, मे कॉज एनी काइंड ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन इन द बिजनेस। अगर आपका पार्टनर का डेथ हो जाता है या पैसा खत्म हो जाता है बिजनेस में, तो इस तरह के केसेस में क्या है, आपका बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आ सकती है, यहाँ तक कि वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ वन इज योर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में मतलब है कि आपस में झगड़ा होना, पार्टनर्स का आपस में झगड़ा होना इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, हार्मोनी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आप एक दूसरे पे शक करोगे, आपको लगेगा कि ये सीक्रेट शेयर कर रहा है बाहर वालों के साथ, एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द वन मेजर डीमेरिट और वन मेजर प्रॉब्लम इज दिस, देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आपसी झगड़े होना। तो पार्टनर्स के आपसी झगड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पार्टनरशिप में। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था, इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब होता है हर पार्टनर क्या है, बिजनेस का या फर्म का इम्प्लाइड एजेंट है। हर पार्टनर फर्म के लिए काम करता है, कहीं भी मौजूद हो उस फर्म के लिए काम करना है। तो बोल रहे एवरी पार्टी इज एजेंट ऑफ द फर्म, अ डिसऑनेस्ट पार्टनर मे कॉज अ ग्रेट लॉस टू द फर्म। तो यहाँ पे क्या है कि जब हर पार्टनर को बोला गया है कि तुम एजेंट हो फर्म के एंड यू हैव टू वर्क इन द फेवर ऑफ द फर्म, तो कभी कभी ये हो सकता है कि कोई डिसऑनेस्ट, खराब या डिसलॉयल व्यक्ति हो सकता है, बेईमान आदमी हो सकता है, जो कि फर्म के लिए गलत डीलिंग्स कर ले और फर्म को किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये डीमेरिट है, दैट रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी इज देयर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अ पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय पब्लिक ट्रस्ट। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये भी एक डीमेरिट है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा क्या होता है, पार्टनरशिप्स को यूजुअली लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई लीगल गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं होता। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन को भी क्या किया गया है, कंपल्सरी नहीं किया गया है। ठीक है, सो दिस रीजन फॉर दिस दैट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर नॉट गिवन पब्लिसिटी। और क्योंकि चीजें सारी की सारी सीक्रेट रखी जाती है, किसी तरह की कोई चीज आपको पब्लिश नहीं करनी है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फेक गलत चीजें भी दिखा सकते हो, जिससे बाहर के लोग को ये फील होगा कि उनके साथ चीटिंग हो सकती है। तो कई केस में क्या देखा गया है कि पार्टनरशिप को ये बोला गया है कि पार्टनरशिप क्या है, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, कॉन्फिडेंस वाली नहीं होती है। नेक्स्ट डिमेरिट इज ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल में क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर अपना पैसा निकालना चाहता है, वो पार्टनरशिप से ही जाना चाहता है, तो इस केस में क्या होगा, जो उसने पैसा लगाया है वो उसको वापस कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि
कैपिटल जो है, पूरा का पूरा पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पार्टनर क्या बोल रहा है, भाई मुझे तो बिजनेस में नहीं करना है, आई वांट टू विथड्रॉ माय मनी, ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर्स। और वो अगर किसी और को भी पार्टनरशिप ट्रांसफर करना भी चाहता है, तो जब तक बाकी पार्टनर्स हाँ नहीं बोलेंगे तो वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि कोई अगर छोड़ना चाहे पार्टनरशिप को तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका जो कैपिटल होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सो दीज आर सम गुड पॉइंट्स एंड सम बैड पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप वी हैव डन टुडे। और आगे जो बोला गया है वो पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला गया है। पार्टनरशिप डीड या और एग्रीमेंट, तो देयर आर सर्टेन स्मॉल पॉइंट्स, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करें या पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें, तो ये एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसके बिना पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। पार्टनरशिप डीड में वो सारी खास बातें होती हैं जो कि आप क्या करते हो, एग्रीमेंट में लिख देते हो पार्टनरशिप के स्टार्ट होने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफरेबल, कोशिश की जाती है कि ओरल ना हो के एक रिटन एग्रीमेंट हो, सो दैट अ रिकॉर्ड ऑफ इट कैन बी केप्ट। इट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द पार्टनरशिप हैज फॉर्म्ड। इसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी मेंशन की जाती है जिसके आधार पे पार्टनरशिप बन रही है। आपने क्या क्या नियम कानून रखे हैं और क्या क्या पार्टनर्स के क्या क्या प्रॉफिट को बांटने के रेशोज होंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा बिजनेस को, अगर कोई सीक्रेसी लीक करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड हियर। फ्यू ऑफ देम आर, आप इसमें मेंशन करते हो, नेम ऑफ द फर्म मेंशन करते हो कि फर्म का नाम क्या होगा, नेम ऑफ फर्म, जो आप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, यहाँ तक ये भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ फर्म मतलब क्या काम होगा वहाँ पे, नेचर ऑफ फर्म मतलब कि फर्म में काम क्या होगा ये भी लिखा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मेन प्लेस है कि प्लेस कहाँ है, कहाँ पे आपका बिजनेस होगा, कहाँ पे आपका फर्म होगी, वो एड्रेस वगैरह लिखा जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप का जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय की होगी, क्या 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 10 साल की होगी, तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी होगा, ठीक है। नेम और एड्रेस सारे पार्टनर्स का, नेम एंड एड्रेस होगा ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स का जो नेम और एड्रेस है उसे एग्रीमेंट में लिखा जाता है। देन अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस में वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, अब उसके अलावा आप जमा कर रहे हो तो आप निकाल कितना सकते हो, विड्रॉल बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना विड्रॉ कर सकता है पैसा, भाई अगर किसी को पैसा विड्रॉ करना है तो वो कितना विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अगर फर्म को फायदा हो रहा है तो उसको किस रेशियो में बटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब अगर किसने पैसा निकाला है तो उसको कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स, जितने विड्रॉल्स हो रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा ये भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो लिखी जाती है कि अगर रिटायरमेंट होना है तो नया पार्टनर का एडमिशन होना है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके अलावा हो सकता है आपका रिटायरमेंट कंडीशंस क्या है, एंडिंग ऑफ बिजनेस, एंडिंग ऑफ बिजनेस की कंडीशंस क्या है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, पर आप इतना भी समझ लेंगे तो इट विल बी इनफ, क्योंकि सारी के सारी पार्टनरशिप की जो डीड्स है, पॉइंट्स उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, कुछ के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको कुछ पता हो तो ठीक रहेगा। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है विदाउट विच अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टार्टेड। इट इज एग्रीमेंट विच इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड इट इज यूजुअली इन रिटर्न ओनली, राइट। ये प्रूफ होता है कि पार्टनरशिप में हमने ये चीजें उस वक्त कही थी। तो अगर कोई झगड़े हो जाते हैं आपस में तो इस पार्टनरशिप डीड को रेफर किया जा सकता है। तो इसमें जो चीजें लिखी गई है, पहला क्या है, द नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है ये बहुत जरूरी है बताना। तो फर्म का नाम, नेचर ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म से मतलब है क्या काम करेगी फर्म, ठीक है। प्लेस क्या है, प्लेस मतलब फर्म का ऑफिस कहाँ होगा, ड्यूरेशन
आपकी पार्टनरशिप कितने लंबे समय की होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उनका नेम एंड एड्रेस क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, विड्रॉल फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है बिजनेस में से, प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स, अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से अपने काम के लिए तो फिर उसको उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, अगर कोई नया एडमिशन हो रहा है, एडमिशन से मतलब नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी कंडीशंस क्या है, कब नया पार्टनर आ सकता है, कब नया पार्टनर नहीं आ सकता है, नया पार्टनर आएगा तो उसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी, दिस इज रिटायरमेंट कंडीशंस, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होना चाहता है या उसकी एज हो गई है, वो रिटायर होना चाहता है तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, ऐसे रिटायर नहीं हो सकते, तो अगर रिटायर हो रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, या हम कंपनी को से क्या देना है, फर्म को से क्या देना है, या उसने फर्म को क्या देना है, एंडिंग अप ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर एंड होगा तो किस तरह से एंड होगा, सबकी सहमति से एंड होगा या जो एक पार्टनर मर जाएगा तब एंड होगा, या क्या क्या सीन रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका एंडिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में बताया गया है। तो पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनरशिप डीड के बिना पार्टनरशिप स्टार्ट हो ही नहीं सकती, विदाउट पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड और विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट योर पार्टनरशिप कैनॉट start. Usually this type of partnership is written and it is on a paper and it is signed by everyone and it is kept properly safely so that it can be referred later on whenever required, and it is one of the major important document of the partnership. So these were some of the things which are mentioned on a partnership deed. So I'll be seeing you in the next video. Till then, keep completing your notes.